Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली वीडियो देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, उस पे क्लिक करके आपको पहली वीडियो का एक्सेस हासिल हो सकता है। Dear student, today we're gonna study English textbook Tulip series book 5th, the unit 2nd, Bearable Device. Before this, we will read the story. It is important for us to read this piece of writing. Birbal is famous for his work in Indian history. He was appointed a poet and singer in the court of Emperor Akbar, but his wit soon earned him a place of courtier among the Navaratnas of Akbar. Read this story and find out how intelligence and presence of mind keep Birbal solve a tricky situation. Wit is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perceptions and mental acuity. This capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situations in an intelligent way. The Urdu version of this piece of writing. बीरबल काफी मशहूर था हिंदुस्तानी तारीख में अपनी समझ के लिए। उसको शायर और मौसीकार मुकर्रर किया गया था अकबर के कोर्ट में, लेकिन उसकी समझ ने उसको एक बहुत अच्छी जगह दी बाकी अकबर के दरबारियों में। इस कहानी को पढ़ो, मालूम करो कि कैसे सूझबूझ या समझ या अक्लमंदी और दिमाग का मौजूदा होना उसने हेल्प की बीरबल को ट्रिकी सिचुएशन सॉल्व करने में। विट जो है वो विट कहते हैं समझ को। समझ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, पिवोटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मीन्स जरूरी हिस्सा है किसी की पर्सनैलिटी का। यह हमें मदद करता है परसेप्शन और मेंटल एक्यूटी को बनाने के लिए। परसेप्शन का क्या मतलब है? तसव्वुर। और मेंटल एक्यूटी का क्या मतलब है कि तेज दिमाग। तो तेज दिमाग बनाने के लिए हमें विट की जरूरत होती है और विट हमें तेज दिमाग बनाता है। द कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिव थॉट और क्विक अंडरस्टैंडिंग, जो इन्वेंटिव थॉट का मतलब होता है ऐजाद किए गए सोचें या ऐजाद की गई सोच, उसकी कैपेसिटी और जल्दी समझने की जो सलाहियत है वो मदद करती है अकवर्ड और ट्रिकी हालात को समझने के लिए, हालात को जो है वो समझने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए एक अक्लमंद तरीके से। Now let's read the story. First we will read the story in English and then the Urdu version, right? So let's start. Once Surya Singh, the prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he didn't bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" "I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I'll never reach the city for I'm tired." Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get on to it. "You ride my horse. I'll walk. I'm going to Delhi, but I don't know the road very well. You can show me the way." The man gladly got on the prince's horse. Surya Singh walked beside him.
When they arrived at the city gates, Surya Singh asked the man to get down. The man looked surprised. Why should I get the off the horse? He asked. The princess explained politely, now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. I'm staying here and don't want to be late. You may go where you like, was the reply. I am not stopping you, but give me my horse first, said Surya Singh. Now, the Urdu version. एक दफा का जिक्र है कि मणिपुर का शहजादा दिल्ली किसी बिजनेस की वजह से आता है। वो अकेला आता है और ये उसका सीक्रेट मिशन होता है और वो किसी भी नौकर को साथ नहीं लाता है। रास्ते में उसको एक कमजोर और थका हुआ आदमी रोड साइड पर बैठे हुए दिखाई देता है। वो अपने घोड़े को रोकता है और उसे पूछता है किस रास्ते आप जा रहे हो। मुझे दिल्ली जाना है जनाब। मुझे रात पड़ने से पहले ही सिटी पहुंचना है, लेकिन मैं थका हुआ हूं। सूर्या सिंह उसके लिए माजरत चाहता है। वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उससे ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है। आप मेरे घोड़े पे चढ़ो, मैं चलूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं रोड को अच्छी तरह से। आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। आदमी बड़े खुशी के साथ शहजादे के घोड़े पे सवार हुआ। सूर्या सिंह उसके साथ चला। जब वो सिटी गेट पहुंचे, सूर्या सिंह ने कहा कि अब नीचे उतरो, लेकिन आदमी ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। क्यों मैं नीचे उतरूं घोड़े से? उसने कहा। शहजादे ने बड़ी शाइस्ता तरीके से बयान किया, अब हम सिटी पहुंच चुके हैं और हमें मुख्तलिफ रास्तों पे जाना होगा। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और देर करना नहीं चाहता हूँ। आप जा सकते हैं जहाँ आप जाना पसंद करते हैं। ये जवाब था, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा पहले मुझे वापस दीजिए, सूर्या सिंह ने कहा। Your horse, you said, is yours? Of course, don't you doubt it. You were taking the advantage of a kind man, was the answer. I showed you the way to the city. Now you say my horse is yours? Your horse? Yes, mine, said the man. Before he could ride away, Surya Singh took hold of the reins of the horse. Let's go to the judge, he said. The two came to Birbal. When Birbal saw them, he asked Surya Singh what he could do for him. He heard the story of the horse from the prince and the traveler. Leave the horse with me, he said. Tomorrow I'll give it to its owner. After both the men had left, Birbal told his servant to take the horse, follow the two men at a distance, then free the animal and see which one of the two it pulled with. Afterwards, he was to bring it back and put it in the stable with other horses of the same size and color. The next day, Birbal called Surya Singh and the traveler and took them to the stable.
There were about a dozen horses of the same size and color. "Your horse is here," said the Birbal to the two men. The traveler couldn't recognize the horse, but the Surya Singh pawned him at once. The horse knew its master too. "This kind of man," said Birbal to the traveler, "offered you a ride on his horse. You try to rob him, you shall get 50 strokes of the whip." Then he turned to the prince, Surya Singh. "I already know your name and address. You know me, then?" "I thought it was a secret. I had heard you were a wise judge, and I wanted to see you." "I know you are the Prince of Manipur," said Birbal. "We have a large country to rule, and it is our business to know who is coming. The government has arranged for your stay here." Surya Singh thanked him. "There is one more thing," he said. "I should like to know how you decide my case." "Willingly," replied Birbal. "I knew you who you were, and realized you would not tell a lie. But I needed a proof. My servant forbade you both with the horse and set it free. It went after you, not the traveler." Then again the traveler couldn't identify the horse in the stable, but you had no difficulty. The prince was greatly impressed by the Birbal's wisdom, and he knew he had found the right man to solve his problem. Note the Urdu version. "आपका घोड़ा? तुम कहते हो कि ये आपका है? बेशक आपको कोई शक है। आप एक kind man means इंसाफ करने वाले आदमी का फायदा उठा रहे हो." ये था जवाब। "मैंने आपको रास्ता दिखाया शहर का, और अब तुम कह रहे हो कि ये घोड़ा तुम्हारा है?" "तुम्हारा घोड़ा?" "हाँ, मेरा घोड़ा," आदमी ने कहा। इससे पहले कि वो वहां से चला जाता, सूर्य सिंह ने उसकी लगाम पकड़ी, यानी कि घोड़े की लगाम पकड़ी। "लेट्स गो टू द जज." आओ हम जज के पास जाएं, उसने कहा। दोनों बीरबल के पास पहुंचे। जब बीरबल ने उनको देखा तो उसने सूर्य से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उसने हार्स की कहानी सुनी, शहजादे से भी और उस सफीर से भी, या सफर करने वाले से भी। अपना घोड़ा यहां मेरे पास छोड़ो, उसने कहा। कल मैं इस घोड़े को उसके मालिक को दूंगा। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। बीरबल ने अपने नौकर से कहा कि आप घोड़ा लेकर उनका पीछा करो, यानी कि उन दो आदमियों का पीछा करो फासले से, और फिर इस जानवर को जो है आजाद कर देना और देखना कि ये किसके पीछे जाएगा। इसके बाद उसको वापस जो है वो लाया गया और इसको जो है वो स्टेबल में डाला गया। स्टेबल बोलते हैं जहां पे घोड़े रखे जाते हैं दूसरे घोड़ों के साथ, जो वैसे ही थे, उनका रंग भी एक जैसा ही था। दूसरे दिन बीरबल ने सूर्य सिंह को बुलाया और उस ट्रैवलर को भी बुलाया, सफीर को भी बुलाया, और उनको स्टेबल में लेकर चले गए। ये वहां पे तकरीबन जो है वो 1 दर्जन जो है वो हॉर्सेस थे, और वो भी एक ही कलर के और एक ही साइज के।
आपका घोड़ा यहाँ है, said बीरबल to the two men. दो आदमियों ने बीरबल से कहा कि आपका घोड़ा यहाँ है. ट्रैवलर अपने घोड़े को या घोड़े को जो है वो पहचान नहीं सका, लेकिन सूर्य सिंह ने एकदम घोड़े को पहचाना और घोड़ा भी अपने मालिक को जानता था. आप इस किस्म के आदमी हो, बीरबल ने उस सफीर से कहा. इसने आपको घोड़े पर चढ़ने दिया और आप इसको लूटना चाहते हो. आप इसको लूटने की कोशिश कर रहे हो. आपको 50 कोड़े जो है वो पड़ेंगे. यहाँ पे स्ट्रोक बोलते हैं कोड़ों को और विप बोलते हैं चाबोक को, जिससे कोड़े लगाते हैं. तो चाबोक से आपको 50 कोड़े पड़ेंगे. वो फिर प्रिंस की तरफ मुड़ा. सूर्य सिंह, मैं पहले ही आपका नाम और आपका पता जानता था. आप मुझे जानते थे तब. मैंने सोचा ये सीक्रेट मिशन है. मैंने आपको सुना था कि आप अक्लमंद जज हैं. मैं ये देखना चाहता था तुमको. मैं जानता हूं कि तुम मणिपुर के शहजादे हो, बीरबल ने कहा. हमारी बहुत बड़ी हमारा बहुत बड़ा मुल्क है जिस पर हम हुकूमत करते हैं, और ये हमारा बिजनेस है कि हम ये जाने कि कौन आ रहा है. गवर्नमेंट ने आपके रहने के लिए यहाँ पे इंतजामात किए हैं. सूर्य सिंह ने उसका शुक्रिया किया और एक और चीज उसने कहा, मैं बताना चाहता हूं. मैं ये जानना चाहता था कि आप इस केस को कैसे जो है वो डिसाइड करेंगे या इस केस का फैसला कैसे सुनाएंगे. willingly replied बीरबल. बीरबल ने जो है मर्जी से जवाब दिया. मैं जानता था और मैंने महसूस किया था कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन मुझे प्रूफ की जरूरत थी. मुझे सबूत की जरूरत थी. मेरे नौकर ने आपका पीछा किया. आप दोनों का पीछा किया घोड़े के साथ और इसको फिर आजाद किया. ये आपके पीछे गया और ये सफीर के पीछे नहीं गया. और दोबारा सफीर इसको यहाँ आइडेंटिफाई भी नहीं कर सका, पहचान भी नहीं जो है वो इसने की इस टेबल में. लेकिन आपको कोई मुश्किलात नहीं हुई. प्रिंस जो है बीरबल से काफी ज्यादा मुतासर हो गया, यानी बीरबल की अक्लमंदी से काफी ज्यादा मुतासर हो गया. वो ये जानता था कि उसने एक अच्छा आदमी इंतखाब किया है जो इस मसले को हल कर सके. तो ये थी हमारी स्टोरी डियर स्टूडेंट. सो हम न्यू वर्ड पे आ जाएंगे. राइट, पर जो न्यू वर्ड हैं वो है मिशन, नाइटफॉल, डाउट, एडवांटेज, रेन, स्टेबल, रिकॉग्नाइज, ऑफर, ड्रॉप, विप और विजडम. तो मिशन बोलते हैं हम मिशन को ही. हमारा कोई मिशन है जिसको इंग्लिश में हम स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी असाइन टू अ पर्सन, यानी कि कोई ऐसा काम जो किसी को पता न चले उसको हम मिशन कह सकते हैं. उसके बाद हमारा है नाइटफॉल. नाइटफॉल का मतलब होता है अंधेरा होने से पहले, यानी कि द अप्रोच ऑफ डार्कनेस नाइट, यानी कि अंधेरा होना नहीं, अंधेरा होने से पहले नहीं बल्कि अंधेरा होना. उसने कहा था ना बिफोर नाइटफॉल, तो बिफोर नाइटफॉल होता है अंधेरे से पहले. डाउट का मतलब होता है शक, जिसको इंग्लिश में अनसर्टेनिटी अबाउट द ट्रूथ और फैक्ट कह सकते हैं. एडवांटेज का मतलब होता है फायदा उठाना, बेटर और मोर फेवरेबल पोजीशन, यानी कि फायदा उठाना. रेन का मतलब होता है लीडर स्ट्रेंथ यूज्ड टू कंट्रोल द हॉर्स, तो इसको हम लगाम कह सकते हैं रेन को. स्टेबल होती है अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, यानी कि जहां पे घोड़ों को रखा जाता है उसको हम जो है स्टेबल कह सकते हैं इंग्लिश में. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, यानी टू एक्सेप्ट और बी अवेयर ऑफ, यानी पहचानना. ऑफर का मतलब होता है जो है किसी को ऑफर करना या किसी को जो है वो तोहफा देना,
यानी कि तोहफे में आओ जी हम घोड़े पे चढ़ें, ये एक तोहफा था उसके लिए। रॉब का मतलब होता है चोर ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन illegally sorry as by force or threat of violence। तो whip का मतलब मैंने आपको बोला था, whip होता है चबोक, तो ये लीदर का बना हुआ होता है और इससे मारते हैं। तो ये कहते हैं लेंथ ऑफ द लीदर यूज्ड टू बेयर अ पर्सन और अर्ज एन एनिमल, राइट। विजडम, नॉलेज, जजमेंट एंड गुड सेंस। तो विजडम का क्या मतलब होता है? अच्छी मालूमात यानी अक्लमंद, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट